مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں، جس کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یسوع کی اس امید اور اس وعدے کے ساتھ آج کے دن کا ایک پازیٹیولی آغاز کریں کہ خدا کا پاک روح میری اور آپ کی مدد کرے، کیونکہ ہم اب دنیا کے نہیں رہے ہیں۔ جس دن سے ہم نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اس کو خداوند کہنا شروع کر دیا نا، اس دن سے اب ہم دنیا کے نہیں رہے، ہم خداوند کے ہیں۔ اور جب ہم خداوند کے ہیں تو پھر آج کا کلام آپ کے لیے ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن سے گزر رہے ہوں، یا آپ روحانی رحلم کے اس معیار سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دور ہو گئے ہیں یا نیچے گر گئے ہیں، یا خداوند سے کسی طرح آپ اس طرح انٹیمیسی یا ملاقات یا ملاپ کر نہیں پا رہے ہیں، تو سنیے آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ کلام کی ہیڈنگ بھی یہی، جلا وطنی میں پکار، یعنی ایسا وقت جب آپ خدا سے دور ہیں، ایسا وقت جب آپ خدا کی حضوری سے دور ہیں، ایسا وقت جب آپ خدا سے ملاقات کرنے سے قاصر ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام سے فوری طور پر جڑیں، تاکہ جو آپ کی تنہائیاں ہیں، آپ کی مصیبتیں ہیں، آپ کی پریشانیاں، ان سے آپ کو ازالہ مل سکے۔ دیکھیے پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اس زبور کی ہیڈنگ بھی وہی ہے، سیم 42 اور 43 کی ہیڈنگ سیم ہے، لیکن اس میں دونوں اسکالر لکھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے یہ لمبا زبور ہے، اس کو شارٹ کر کے 2 حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے، لیکن میں اس میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی اور اس میں بھی جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تنہائی کا، جلا وطنی کا، دوری کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ اس میں بیان کیا گیا، اس کو اب دیکھتے ہیں۔ اے خداوند میرا انصاف کر، اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر۔ خداوند ہمارا وکیل بنتا ہے، ہالےلویا۔ یہاں ہمیں خدا کا بندہ داؤد خدا میں ہمیں وکالت پیش کرتا ہے، وکالت مہیا کرتا ہے۔ جیسے کسی بھی لڑائی میں جب اس کا انصاف کرنا ہوتا ہے تو ایک جج اور ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہاں پر ہمیں ہماری اس وکالت کرنے کے لیے خداوند سے وکیل کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور یہ داؤد کہہ رہا ہے، اور دغاباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا۔ تیری وکالت جو بیچ میں آئے گی نا، وہ مجھے چھڑائے، ہالےلویا، وہ مجھے رہائی دے گی۔ یعنی آپ ہی مجھے کسی بھی طرح سے یہاں سے نکالیے، اس کے بغیر میں نکل نہیں سکتا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ انسان کی قوت خدا سے ہے، انسان کی قوت خدا سے ہے، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے، تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ اگر خداوند تو میرے ساتھ نہ رہے تو میں تو ایک ٹڈی کی مانند ہوں، میں تو جنگلی جانور بن جاؤں گا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو میں ایک رحم دل، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، سخی اور ایک غیور خدا کا وہ غیور بیٹا بنوں گا جو اپنے باپ جیسے کام کرتا ہو، ہالےلویا۔ پھر لکھا ہے، میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے، جب وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے تو میں کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ ہم ادھر ادھر، ہائے میں مر گیا، ہائے میرے گھروں بیماری نہیں جاتی، گھر سے بھوک نہیں جاتی، گھر سے جو نہ ہمارے پریشانی نہیں جاتی، بچے نہیں آپس میں ان کا سلوک نہیں ہے، ماں باپ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گھر میں جو نا بھوک ہے، افلاس ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں، اور ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہے؟ کیوں ماتم کرتا پھرتا ہے؟ اس لیے کہ تیری قوت تیرا خدا ہے، اس لیے کہ تیری قوت تیرا خدا ہے، اور جس خدا سے تیری قوت ہے تو نے اس قوت سے ملنا ہی چھوڑ دی ہے۔
तूने उस कुव्वत से मुलाकात करना ही छोड़ दी है, तूने उस कुव्वत से जोर लेना ही छोड़ दिया है। आप देखें, हर रोज आप जैसे भी हैं, गरीब है, अमीर है, जो कुछ भी है, हर रोज खाने की टेबल पे बैठ के खाना तो खाते ही है ना। क्यों खाते हैं? पानी क्यों पीते हैं? रोटी क्यों खाते हैं? ताकि बदन किसी तरह आपका क्या रहे, मजबूत रहे, कवी हो, ताकतवर हो, ताकि आप बेदिल हो कि कहीं गिर ना जाए। सुनिए, जिस तरह बदन को जोरावर बनाने के लिए, कुव्वत वाला बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए डॉक्टर आपको कहते हैं ना, इस बदन को सेहतमंद रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ताकि आपके बदन में दोबारा से सेहत बहाल हो। अब आप रूहानी आलम में आ जाइए। कब से आपने खुदावन से बेरुखी का मुजाहरा किया हुआ है? कब से बेरुखी आपने खुदावन से की हुई है? हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि हम रूहानी तौर पर कितने कमजोर हो चुके हैं। और ये बाइबल की वर्स भी है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। क्यों कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं? क्योंकि खुदावंद ने उसका जोर बहाल कर दिया है। और अगली आयत में आपके लिए खुशी की खबर है। हमारा जोर बहाल कैसे होता है? कमजोर शख्स का जोर रूहानी रहलम में बहाल कैसे होता है? वो कैसे दोबारा से जोरावर हो जाता है? वो आदम जो बागे अदन में खुदा का तजर्बा रखता था, उस तजर्बे में दोबारा बहाल करने के लिए खुदा मुझे और आपको ऑफर करता है अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह में। सुनिए, यहां पे लिखा है, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज। बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की। अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे। ये बहुत बड़ी पेशन गोई हो गई है, प्रोफेसी हो गई है। और मैं आज आपको नूर और सच्चाई से मुतारफ करने के लिए इस पाक और जिंदा कलाम का सहारा लूंगा, ताकि मेरा और आपका वो जो जोर टूट गया है ना, वो दोबारा से बहाल हो सके और हम फिर से जोरावर हो जाएं और कवि हो जाएं, मजबूत हो जाएं। क्या लिखा है? मेरी रहबरी कर, वही मुझको तेरे कोए मकदस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। कौन? नूर और सच्चाई। नूर और सच्चाई हमें खुदावंद के मस्कनों तक और उसके मकदस तक, कोई मकदस तक पहुंचाए। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हजूर, जो मेरी कमाल खुशी है। खुशी की बात नहीं हो रही है, जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजा कर तेरी सताइश करूंगा। हाँ, 5वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। फिर उसकी सताइश क्या करूंगा। आइए नूर और सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा जोर, हमारी कुव्वत है, जिसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दाऊद दे रहा है। मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और ये लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, जिंदगी का कलाम। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें यानी कलाम में जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर बनी। जिस कलाम में जिंदगी थी वो हमारे लिए नूर बन गया है। हालेलुया, राशा ताला रबा। और आपको भी पता है, नूर, यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। आए नूर से दोस्ती करना सीखें, कलाम से दोस्ती करना सीखें। हमारा जोर बहाल हो जाएगा, हमारी कुव्वत बहाल हो जाएगी, हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। हम मातम करना छोड़ देंगे। जो हम मातम करते फिरते हैं ना, अपनी कमजोरियों का, अपनी कमजोरियों का और अपने हर बुरे हालात का, सुनिए, मातम आपकी जुबान से छूट जाएगा, शुक्रगुजारी उसकी जगह पे आ जाएगी। आगे लिखा है, और नूर
तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। सुनिए, नूर मौजूद है, अपना जोर नूर में ढूंढना है तो यीशु के पास आना है। मैं बात कर रहा था सच्चाई की और मैं बात कर रहा था नूर की। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं 14वीं आयत से, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई, नूर का ऊपर आपने जिक्र पढ़ लिया है और अब सच्चाई की बात करने लगा हूं। फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। फिर 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई, फजल सच्चाई नूर यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया कि खुदा नूर है, सच्चाई है और खुदा हमारे लिए फजल को जारी करता है। और जो आयतें पीछे हम पढ़ के आए हैं ज़बूर की किताब में कि कौन हमें खुदा के कोई मकदस में पहुंचाएगा, कौन हमारी रहबरी करेगा कि हम खुदा के कोई मकदस में जो है वो पहुंच सकें, कौन हमारी रहबरी करेगा कि हम खुदा के मस्कनों का दोबारा से दीदार कर सकें, कौन हमें खुदा के मज़बा के पास लेके जाएगा। सुनिए, खुदा के मज़बा के पास सिर्फ एक ही है, खुदा का ज़िबा किया हुआ बर्रा है जो हमें खुदा के मज़बा में दोबारा लेके जाता है। कलाम कहता है, यूहन्ना की इंजील 10 बाब 9वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने मार डालने, मैं इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और यहीं पे लिखा हुआ है, मैं अंदर बाहर आया जाया करूंगा और चारा पाऊंगा। खुदा के मज़बा में मुझे जाने की यीशु मसीह के वसीला से परमिशन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों का दरवाजा हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, उसके मज़बा के पास जा नहीं सकता है। जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो शर्मिंदा ना होगा, वो निजात पाएगा, वो रिहाई पाएगा, वो बरकत पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। राशा काला राबासी काला मंथा राबाला या रासा काला। यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, यीशु मसीह हमारी जिंदगी का नूर है। हालेलुया। आए खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें कि उसके साथ उसकी मोहब्बत में लिपट जाए, उसके प्यार में लिपट जाए, ताकि हम खुदा के मज़बा का तवाफ कर सकें, उसकी तरफ और बढ़ सकें हम, और खुदा की हजूरी के सबब से हम जोरावर हो सकें। और फिर ये नहीं कहना मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा दिल काला है, मेरा दिल कमज़ोर है, मेरी रूह बिल्कुल जो है वो मरी जाती है। कलाम कहता है, मातम करते ना फिरो, मातम करना छोड़ दो, मातम करना छोड़ दो, मातम करना छोड़ दो। कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है, कमाल खुशी। हालेलुया। कमाल खुशी की बात करता है। कलाम क्या कहता है? कमाल खुशी, कमाल खुशी। उस खुदा के हजूर में जो मेरी कमाल खुशी है, उस कमाल खुशी की बात करना शुरू कर दें, फिर खुदा के चेहरे की रौनक बन जाएं। खुदा जब हमें मिल जाए तो हमारे चेहरे की रौनक हमें बताए कि हमें खुदावंद मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खुशी, हमारी शादमानी, हमारे चेहरे का नूर, हमारे दिल की शादमानी इस बात का इजहार है कि हमें खुदावंद मिल गया। हालेलुया। ओ कलाम कहता है, जिसका खोया हुआ दिरहम था, जब उसे मिल गया तो उसने अपने दोस्तों को जमा किया। हालेलुया। उसने कहा, आओ मेरे साथ खुशी करो, आओ मेरे साथ खुशी करो, आओ मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मुझे मिल गया है। सुनिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बहन जिसका खोया हुआ दिरहम मिल गया, वो सबको इकट्ठा करके, और वो जब कहती मेरे साथ खुशी करो, तो हम जब दुनिया में खो गए थे, हम जब दुनिया में जिला वतन हो गए थे, हमारा जब कोई सुनने वाला और हमारी मदद करने वाला नहीं था, उस दौर से निकलकर जब हम अपने खुदावंद के पास वापस लौट गए हैं, तो हमें कितनी ज्यादा कमाल खुशी के साथ अपने दोस्तों को इकट्ठा करना चाहिए और ये कहना नहीं चाहिए, आओ मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैं पहले खोया हुआ था, मुझे अब मेरा खुदावंद मिल गया है। पहले मैं कमजोर था, अब मैं अपने जोर के पास वापस आ गया हूं।
مصرف بیٹے کی طرح آئیں خداوند کے اس جشن کو سیلیبریٹ کریں. اپنے باپ کے گھر میں ہم لوٹ کے واپس آ گئے ہیں، اور جب باپ کے گھر میں ہم لوٹ کے واپس آ گئے ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں. اور کلام کہتا ہے خداوند میرے چہرے کی رونق ہے، میں پھر اسی کی ستائش کروں گا. اس کا مطلب ہے میں پھر اس کے اس مذبح میں واپس بلا لیا گیا ہوں، اس کی حضوری میں بلا لیا گیا ہوں، اس لیے میں اسی ستائش میں، اسی ورشپ میں خدا کے ساتھ اب چلوں گا، پھروں گا، اٹھوں گا، بیٹھوں گا، اس کے ساتھ وقت گزاروں گا. اب میرا دن، رات، میری دوپہر، میری شام، میرے وقت اب میرے خداوند کے ساتھ گزریں گے، اور اس سبب سے میرے چہرے کی رونق بحال ہو جائے گی، اور اس سبب سے میں کمال خوشی سے خداوند کے ساتھ اپنا وقت گزاروں گا. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے اور پاک روح کی اس تھیم کو سمجھیے، اور اپنا جو وقت خداوند میں آپ کو مل گیا ہے، جو واپس بلا لیے گئے ہیں، جلا وطنی ختم کر دیا خدا نے، آئیں اس کو سیلیبریٹ کریں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیے.